अच्छा, क्या शुरू करें? हाँ, शुरू कर। कहाँ तक हुआ था? ये गोपीनाथ चरण और वो हो गया था। ये भक्ति का महत्व दिखाते हैं। तत्र च प्रेमनैव तत्रापि श्रीमद् नंद ब्रजजन प्रेमवत् सर्वनिरपेक्षतया परम महत्तमेनैव निष्कार्यते। ये भक्ति उत्तमा भक्ति का प्रकरण है। श्रीमद् भागवत में उत्तमा भक्ति कही में इसे विश्लेषण किया है। श्रीमद् बृहद भागवतामृत में उसी का निष्कर्ष करते हैं। उसके निष्कर्ष में ये होता है, गोपीनाथ की चरणारविंद की जो सेवा है ये भक्ति है, वो ब्रजजन के अनुरागी हो करके करना पड़ेगा। तत्र भी श्रीमद् नंद ब्रजजन प्रेमवत, ब्रजवासी जनों के नंद ब्रज की जो प्रीति है, ममता है, अनन्य ममता, शून्य जो ममता है, जिसमें जद्धामार्थ सुरित प्रियात्मा तनया प्राणाशय सत्कृते, इस प्रकार जिसका अनुभव होता, उसके द्वारा सर्वनिरपेक्षतया, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो है ही अपेक्षा। उसके बाद इस जगत एवं पर जगत की जितनी लोभनीय वस्तु है उससे अपेक्षा न रख करके उन्हीं में जो प्रीति होती है इसी का प्रदर्शन करते हैं। ये थोड़ा कर दूंगा। थोड़ी तथा परम महत्तमे नैव निष्कार्यते, उसी का जो परम महत्व है, सर्वश्रेष्ठत्व है, उसी का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। बोलिए। So, as said in the last class, this book is giving the essence of Bhagavata Purana, and Bhagavata Purana has analyzed or discussed Uttama Bhakti. So this is consolidating that, the Uttama Bhakti only. Uttama Bhakti is that in which is characterized by the worship of Gopinath, the Lord of Gopis, by following in the footsteps of those who serve, those who have love for the Lord, that is Brajvasis. And ब्रजवासी का स्वरूप क्या होता है? जब धामार्थ सुहित प्रियात्मा तनया प्राणाशय तत्कृते, धाम अर्थ सुहित प्रिय आत्मा तनय ये उनके लिए होता है। ऐसे ममता सर्वनिरपेक्षतया ये पीछे आएगा। So the characteristic of a Brajvasi is that they use everything that belongs to them in the service of Lord Krishna. They don't have any personal desire for their own fulfillment. Their only desire is to serve Lord Krishna. So this Uttama Bhakti is characterized by a pure desire for service for Krishna without any other desires for all the desirable things which people want from this world and from the other world. The devotees do not desire anything. So it is free from these kinds of desires, and it is characterized by a pure love. The only desire is to serve Lord Krishna. In the case of dharma, artha, kama and moksha, that you desire, you want to be liberated from this world, or you want some positions in this world. But in the case of Uttama Bhakti, you don't desire anything other than the service of the Lord. Sarva nirapekshaya. Bhakti risha vajanam. तदिहामुत्र उपाधीन विरेशनो अनुस्मरण कल्पनम एतदेव निष्कर्मम। इस जगत एक बात विभूति, शरीर शरीर संपर्क और त्रिपाद विभूति की जितनी है, इनमें आकांक्षा न रख करके केवल उन्हीं के सेवा के तात्पर्य में ही जो आत्मनियोग करेगा, जैसे ब्रजवासी जन है, वही उत्तम भक्ति है। So the Lord this creation consists of 4 vibhuti padas. This is Ekpad Vibhuti in the material creation, and the spiritual worlds are the Tripad, they are called Tripad Vibhuti. So in the Ekpad Vibhuti,
the jivas crave for the fulfillment of their bodily desires. They want to fulfill their, please their senses. And some people want to go to the Tripad Vibhuti. They want to be liberated from here, and they expect to gain something there. So in Uttama Bhakti, we neither crave for things here in the Ekapada Vibhuti or for things there also. We just crave for Lord's service, pure service. परम महत्तमे नैव निष्कार चाहिए। इस प्रकार जो भक्ति है उसकी जो परम महत्व है उसका ही मैं विशेष रूप से प्रदर्शन करता हूँ। So I am Sanatana Goswami Pad is saying that I am here describing or explaining this bhakti, the greatness of this kind of a bhakti, which is Uttama Bhakti. इस प्रकार भक्ति करने वाले के लिए क्या मिलेगा उसका प्रदर्शन करते हैं। बोलिए। What do you get by doing this kind of a bhakti? I said earlier that one will not practice or listen to anything or practice unless one knows the goal. So what will you get? What is the prayojana of practicing this kind of a bhakti? I am going to describe now. एतादृशीं भक्तिं कुर्वतां जनानां वैकुंठपर्ये श्रीमद् गोलोके श्रीमन्नन्दकिशोरेण समं निरंतर स्वैर विहारं प्राप्य फलमिति चाग्रे प्रदर्शते। इस प्रकार भक्ति जो लोग करेंगे उन भक्ति करने वाले व्यक्ति को नंदकिशोर के साथ उनके निरंतर सेवा परिचर्या करने की जो सौभाग्य वो प्राप्त होगा और उनके साथ रहने के लिए ये भी सौभाग्य मिलेगा। One who does this Uttama Bhakti will get an opportunity to associate with Lord Krishna and constantly be engaged in his service. ये तो अग्रे प्रदर्शित है, किसी के आगे दिखाएंगे। एतदेव अखिलम यथास्थानम अग्रे व्यक्ततया विस्तरण निर्वचनीयम। ये मूल विषय ये है, इसका यथास्थान है, स्थान स्थान पर इसका हम निर्वचन करेंगे, विशेष रूप से विशद करेंगे इसको। This is the essence of this book, and we will analyze it or describe it in different places of the book, expand it in different places when the time comes. इसको प्राप्त करने के लिए जो गुरुजन है उनके महत्व को स्वीकार करना आवश्यक होता है, अर्थात उनको सम्मान देना आवश्यक होता है। इसको मंगलाचरण कहते हैं। तदर्थमेव परमाभीष्ट तरस्य श्रीमद् दैवत वरस्य असाधारण परम उत्कर्ष वर्णनेन तन महाप्रसादम जाचमान इव प्रथम मंगलम आचरति। मंगलाचरण ये करते हैं अभीष्ट सिद्धि के लिए करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति के महत्व वर्णन करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ और उसके लिए परम अभीष्ट देव की मैं वर्णन करता हूँ और उनके महत्व स्वीकार करता हूँ। So we do Mangalacharana in order to fulfill our goals. We start a book and we want to explain something. So this is our goal. And in order to do this, we have to glorify and accept the greatness of the elderly devotees. So I am in this Mangalacharana, I am doing precisely that. I am glorifying and accepting the greatness of the elderly devotees, those who have given me this knowledge. अर्थात जिनके वर्णन से, जिनके महत्व को स्वीकार करने से, जिनको प्रणाम करने से इनके अभीष्ट सिद्धि होगी, अर्थात परम महत्व जो उत्तम भक्ति है उसका वर्णन कर सकेंगे, उनकी स्फूर्ति होगी। इसलिए उनके प्रणाम करते हैं। ये उनके अभीष्ट देव है श्रीमन महाप्रभु श्री गौरांग देव, उनका वर्णन करते हैं। जयति निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्णो
विविध मधुरिमा भी कोविकोईश्वरो गंधि गत परम दशांतम जैसे चैतन्य रूपात अनुभव पदमाप्तम प्रेम गोपीषु नित्यम। ये जयति, जयति शब्द का अर्थ होता सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति, जो जययुक्त हो, अपने असाधारण महिमा के द्वारा जययुक्त हो। वो किस प्रकार है? निज प्रेम पदाब्ज निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्ण। अपनी चरणारविंद की जो ममता है, प्रेम है, उसको देने के लिए जो अवतीर्ण हुई है। विविध मधुरिमा भी कोपी कोईश्वर गंध। विविध मधुरिमा भी कोपी कोईश्वर गंध। मधुरिमा जो माधुर्य है, उसकी जो समुद्र स्वरूप है और किशोर अवस्था में जो निरंतर विलसित होते हैं, इस प्रकार गौरांग देव जी मैं प्रणाम करता हूँ। और गत परम दशांतम जैसे चैतन्य रूपात, चैतन्य रूप में ही भगवत्ता की चरम सीमा को जिन्होंने प्रदर्शन किया है। अनुभव पदमाप्तम प्रेम गोपीषु नित्यम। और गोपिका की जो प्रेम है, उन प्रेम की जिन्होंने अपने अनुभव में लाया है, इस प्रकार जो चैतन्य देव है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनके सर्वोत्कर्षता को स्वीकार करता हूँ। So by glorifying the